Assalamu alaikum students. Today we will discuss the data query language command, that is select command. It's also known as DQL language and also known as data retrieval language. This is known as data retrieval language because this language command is only used to retrieve, to pull out data or to extract data from the database. Keep in mind that select statement is only used to view a data in a database, but it has no permanent effect on the database. Means that के select statement के जितनी भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे वो सिर्फ डेटा को व्यू करने के लिए होंगे, डेटा के ऊपर इसके कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं होंगे। ये टेम्परेरी यूज़र को जिस तरीके से डेटा नज़र आएगा, देखना चाहता है जिस तरीके से यूज़र डेटा को, सिर्फ उसी टाइम पर स्क्रीन के व्यू के लिए हम सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। बैक एंड पे डेटा में कोई चेंज अकर नहीं होगी थ्रू सेलेक्ट स्टेटमेंट। Okay, this is the basic syntax of the select statement. Select attribute list from table list where condition. Okay, ये select के साथ select is a keyword. Select के साथ हमने mention करना है columns के name from table list. Table list means here we can mention the table name, we can extract a single data from a single table, or we can also extract data from the multiple table at a time. Where condition, where is a keyword condition, we have if we want to mention some condition, we can, if we want to apply some condition on the view of the database, so here we will mention that condition. Where attribute list is a list of attribute names whose values are to be retrieved by the query. Attribute list, basically attribute, it's another name of the column of the table. एट्रीब्यूट लिस्ट, यहाँ पे हमने एट्रीब्यूट की लिस्ट मेंशन करनी है, कौन कौन सा कॉलम हम कौन कौन से कॉलम से हम डेटा रिट्रीव करना चाहते हैं। टेबल लिस्ट, कौन कौन सी टेबल्स, यहाँ पे कॉलम का नेम सेलेक्ट के साथ लिखेंगे, टेबल का लिस्ट फ्रॉम कीवर्ड के बाद लिखेंगे। कंडीशन इज अ कंडीशनल boolean expression that identifies a table to be retrieved by the query. Boolean expressions means boolean expressions have yes or no, on or off conditions. means कि अगर कंडीशन ट्रू होती है, जब कंडीशन जिस क्यूरी पर रिकॉर्ड पर ट्रू हो रही है तो वो रिकॉर्ड आपको सिर्फ शो होंगे। Select statement classes. A query in SQL can consist of up to 6 classes, but only the first two, select and from, are mandatory. The classes are specified in the following order. Select, from are the mandatory classes. Mandatory part components of the select statement are the DQL language commands. Select attribute list from table list means कि जब भी हम select statement यूज़ करना चाहेंगे, ये दो पार्ट इस स्टेटमेंट के मस्ट है, मैंडेटरी है, इसके बगैर हम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अदर, जबकि जो हमारे पास वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, दीज आर द ऑप्शनल क्लासेस ऑफ द सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट के 6 पार्ट्स हो सकते हैं, पहले दो मैंडेटरी हैं, सेलेक्ट और फ्रॉम। वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, ये आपके पास ऑप्शनल है। वेयर अगर कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं रिट्रीवल के ऊपर तो उसके लिए हम कंडीशन मैच करते हैं। अगर ग्रुपिंग करना चाहते हैं, रिकॉर्ड को ग्रुप वाइज शो करना चाहते हैं, किसी एट्रीब्यूट की बेसिस पर ग्रुपिंग पॉसिबल है टेबल के अंदर, टेबल के रिकॉर्ड के अंदर, तो वो हम ग्रुप बाय के लिए लगाते हैं। हैविंग, जब भी हम ग्रुप बाय की स्टेटमेंट या क्लास यूज़ करते हैं और उसके बाद ग्रुप के ऊपर कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम हैविंग क्लास यूज़ करते हैं, उसके लिए हम वेयर क्लास नहीं यूज़ करेंगे। ऑर्डर बाय अगर ऑर्डर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप कोई रिकॉर्ड शो करवाना चाहते हैं किसी भी एट्रीब्यूट की बेस पर,
हम कहते हैं नेम की बेस पर नेम वाइज ऑर्डर कर दें तो उसके लिए हम ऑर्डर बाय का कीवर्ड यूज़ करेंगे. These four are the optional classes of the select statement. By, select and from are the mandatory classes of the DQL language command, that is select command. Okay. First, select statement के साथ हम multiple functions, different function अप्लाई कर सकते हैं डेटा के ऊपर. डिफरेंट ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं डेटा के ऊपर. लेकिन ये याद रखिएगा जो भी ऑपरेशन सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ होंगे वो टेम्पररी होंगे, वो सिर्फ व्यू के लिए होंगे. परमानेंट स्टोरेज या परमानेंट इफेक्ट इसका डेटाबेस की डेटा के ऊपर नहीं आएगा. First one is aggregate functions. Aggregate functions means mathematical functions. Include count, sum, max, min, average. इस टाइप के ये आपके पास एग्रीगेट फंक्शन हो सकते हैं. इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन भी आप कर सकते हैं एग्रीगेट सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू. क्यूरी क्या है? हम कहते हैं ये एक एग्जांपल आपको. फाइंड द मिनिमम मैक्सिमम सैलरी एंड एवरेज सैलरी अमंग ऑल द एम्प्लॉयज. जितनी भी एम्प्लॉयज हैं उनकी मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज सैलरी फाइंड करें. तो ये क्या करें? सेलेक्ट मैक्सिमम. मैक्सिमम इज ए कीवर्ड. वाइज सैलरी एट्रीब्यूट का नेम हो जाएगा मिनिमम. फिर आपके पास फंक्शन है और इसी तरीके से एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय. ये हम प्रैक्टिकल करते हैं कि इसकी आपको क्या चीज़ शो होगी. यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट का टेबल है. स्टूडेंट के टेबल में हम कहते हैं ये हमारे पास फी का कॉलम है, ये हमारे पास एज का कॉलम है, ये आईडी. ओके. एक बात याद रखिएगा, जितनी भी हमारे पास एग्रीगेट फंक्शंस हैं, जितनी भी मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, ये सिर्फ उन कॉलम्स पे अप्लाई होती हैं जिसकी डेटा टाइप आपके पास इंटीजर होगी, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जिसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन पॉसिबल है. उन कॉलम्स के ऊपर हम एग्रीगेट फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू. जो कॉलम हमारे पास कैरेक्टर डेटा टाइप्स के हैं उनके ऊपर हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते. अगर करेंगे तो हमें एरर मिलेगा. स्टेटमेंट हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, कमेंट में दे दें. हमारे मैथमेटिकल या एग्रीगेट फंक्शन पहला क्या है, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज फाइंड करना है. ठीक, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल फ्रॉम स्टूडेंट sorry, select minimum salary, minimum fee, maximum fee, maximum fee और average fee. फ्रॉम स्टूडेंट. ठीक, स्टूडेंट के टेबल से हमें क्या करो, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज फी शो कर दो. एग्जीक्यूट करें. ठीक, मिनिमम फ़ी आपके पास क्या आ रहा है, 1000. मैक्सिमम फ़ी आपके पास 4000 और एवरेज फ़ी इसकी ये है. एवरेज का फार्मूला क्या है कि टोटल नंबर ऑफ, ये जितनी भी फ़ी है ये प्लस हो जाएगी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द रिकॉर्ड्स. ठीक, ये आपके पास ये फंक्शन आ गया. सिंपल इसका सिंटैक्स क्या था, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट. ठीक,
सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट से क्या होगा, जितनी भी आपके पास रिकॉर्ड हैं वो शो हो जाएंगे। अगर जित सब कॉलम आपने शो करवाने किसी भी टेबल के, तो उसके लिए आपके पास हम उसके लिए स्टेरिक का कीवर्ड यूज़ करते हैं। अगर आपने सेलेक्टेड कॉलम शो करवाने हैं अपनी मर्जी के, सेलेक्ट आईडी नेम फी, ये आईडी एंड फी शो करवाने, सिर्फ दो कॉलम शो कराने हैं फ्रॉम स्टूडेंट, उसके लिए हम इस टाइप की कमांड लिखते हैं। ठीक, इसी तरीके से अगर आपने किसी कंडीशन के बेसिस पर रिकॉर्ड रिट्रीव करना है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, हम कहते हैं जितनी भी जिनकी आईडी ग्रेटर देन ग्रेटर देन 3 है, तो उसके रिकॉर्ड शो कर दें। इसके लिए ये आपके पास अब जिसकी आईडी ग्रेटर देन 3 होगी, आईडी 4 5 6 7 8 9, ये आपके पास शो हो जाएगी। ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, इन्हें ना देखें 1 2 3, ये आपके पास आईडी का कॉलम है। ठीक है, इसी तरीके से एक है हमारे पास काउंट का फंक्शन। काउंट फंक्शन बेसिकली क्या करता है, इट return total number of record, count the total number of record in a table, select static from select count, यहाँ पे क्या कर दें, या किसी कॉलम का नेम मेंशन कर दें, या static from student। ठीक, it shows total number of record in the table। जबकि इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, काउंट फी फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी फी इक्वल्स टू 4000। ठीक, उन स्टूडेंट को काउंट करो जिनकी फी 4000 है। अब यहाँ पे आप चेक कर लें कितने स्टूडेंट के हमारे पास फी 4000 है, ओनली 2 रिकॉर्ड। इसी तरीके से अगर हम कहें कि जिनकी फी हमारे पास 1000 है, तो उसको यहाँ पे ओनली 1 रिकॉर्ड आपको शो हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। पहली जो हमने स्टेटमेंट की थी वो इस तरीके की थी, select static count static from student, इस तरीके की भी हम कर सकते हैं। ये सेम आपको नंबर देगा। ठीक, यहाँ पे आपने कोई कंडीशन मेंशन नहीं की, तो वो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड काउंट करके डेटाबेस से आपको ये स्टेटमेंट दे देगी। क्लियर है? सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास काउंट की हो गई। काउंट के बाद हम देखते हैं ग्रुपिंग की। ठीक, in many cases we want to apply aggregate function to subgroup of tuples in a relation. Each subgroup of tuple consists of set of tuples that have the same values of the grouping, and the function is applied to which subgroup independently. SQL has a subgroup by class specifying the grouping attribute, which must also appear in a select class. ग्रुपिंग उस टाइम पॉसिबल है जब आप
किसी रिकॉर्ड आपके टेबल में कोई ऐसा कॉलम मौजूद हो जिसके डेटा की बेसिस पर रिकॉर्ड की हम ग्रुपिंग कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट की बेसिस पर हम रिकॉर्ड्स को ग्रुप आउट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल IBMS के एम्प्लॉय का ग्रुप बना दो, एग्रीकल्चर के एम्प्लॉय का ग्रुप बना दो, तो इस बेसिस पर ग्रुप बाय का कीवर्ड या क्लास हम यूज़ कर सकते हैं। ग्रुप बाय की क्लास ग्रुप बाय की कमांड हम उस टाइम यूज़ करते हैं जब हमारे पास कॉलम कोई ऐसा कॉलम मौजूद हो, कोई ऐसा एट्रीब्यूट मौजूद हो जिसकी बेसिस पर हम रिकॉर्ड की ग्रुपिंग कर सकें। अदरवाइज ये स्टेटमेंट हम यूज़ नहीं कर सकते। For each department, retrieve the department number, the number of employees in the department, and their average salary. Select D number, count average salary from employee group by department number. डिपार्टमेंट नंबर की बेसिस पर एम्प्लॉयज़ को काउंट करो कि कितने एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, उनका डिपार्टमेंट नंबर रिट्रीव करो और एवरेज सैलरी फाइंड आउट करो। इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं? ग्रुप बाय के लिए क्या करते हैं? सेलेक्ट काउंट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ग्रुप बाय फी। फी की बेसिस पर ग्रुप्स बना दो स्टूडेंट के। ठीक, काउंट 1 2 1 यहाँ पे साथ में हम मेंशन कर देते हैं फी को। ठीक, अब यहाँ पे आपको फ़ी है तो 1000 कि जिन जिन की फ़ी होगी वो आपको शो हो जाएगा कि एक बंदे की 1000 फ़ी है, स्टूडेंट्स में 1500 तीन बंदों की है, 2000 दो बंदों की है, 4000 टू स्टूडेंट्स की है। ये याद रखिएगा, ग्रुप बाय उस कॉलम पे अप्लाई होता है जहाँ पे आपके पास रिकॉर्ड में रिपीटिशन आ रही हो, डुप्लीकेशन आ रही हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास फी का ऐसा कॉलम है जिसमें डुप्लीकेशन अकर हो रही है, या हम कह सकते हैं एज का ऐसा कॉलम है जिसमें डुप्लीकेशन आ रही है। इसकी बेसिस पर हम ग्रुप बाय का कमांड अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से एक दूसरा देख लें। एज की बेसिस पर हम अप्लाई करते हैं ठीक। 23 का एक बंदा है, 40 यहाँ पे आप देख लें, 13 के 3 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या कर रही है? ग्रुपिंग कर रही है एज की बेस पर। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा हमारे पास क्या चीज़ आ रही है रिपीटिशन में? नेम में यहाँ पे तो रिपीटिशन अगर है, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि काउंट करो काउंट नेम फ्रॉम ग्रुप बाय नेम। ठीक, 3 स्टूडेंट्स के शानों में यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे शान 3 टाइम आपके पास है। क्लियर? If you want to mention or apply some condition on the group by command, so for this purpose we will use the having command. We will not use the where class. Okay,
The having class sometime we want to retrieve the values of this function for only those groups that satisfy certain condition. If we want to apply certain condition on the grouping, so we will use the having class. The having class is used for specifying a selection condition on groups rather than on individual tuples. For tuples, we will apply where class, and for group specifying a selection condition on groups, we will use having class. एग्जाम्पल क्या है, सेलेक्ट दोज डिपार्टमेंट्स हुज टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज लेस देन 5. इसके लिए कैसे लिखते हैं, सेलेक्ट काउंट एम्प्लॉय आईडी डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम. हैविंग काउंट एम्प्लॉय आईडी इज ग्रेटर देन 5 मीन्स के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जिस डिपार्टमेंट में 5 से कम है वो उनको शो कर दो, उन डिपार्टमेंट के नेम शो कर दो. इस क्यूरी को हम किस तरीके से अपने प्रैक्टिकल उसमें चेक करेंगे. इसी तरीके से सिंपली हम लिखते हैं ये वाली स्टेटमेंट. हम कहते हैं वो सारे रिकॉर्ड शो कर दो जिनकी फीस ज़्यादा हो, हैविंग फी इज ग्रेटर देन 1000. ठीक, जिनकी फी 1000 से ज़्यादा हो उन स्टूडेंट्स को या उनको काउंट करके शो कर दो. ठीक, ये आपको फी शो हो रही है जो 5000 से ज़्यादा है और टोटल नंबर 3 स्टूडेंट्स की 1500 है, 2 स्टूडेंट की 2000 और 4000. इसी तरीके से हम कहते हैं हैविंग फी इक्वल्स टू वन स्टूडेंट की. या हम कहते हैं काउंट करो स्टैटिक को, यहाँ पे हम कह देते हैं ठीक. अब यहाँ पे आपने वो रिकॉर्ड वो कॉलम मेंशन करना होगा जिसकी बेसिस पर आप ग्रुपिंग करें. ग्रुपिंग किसकी बेसिस, कौन से कॉलम पर मेंशन हो रही है, फी के कॉलम पर, आईडी के कॉलम पे नहीं. तो इस वजह से यहाँ पे आपको एरर मिल रहा है. ठीक, इसी तरीके से हम इक्वल का भी कर सकते हैं, लेस देन का भी कर सकते हैं. जिस कॉलम की बेसिस पर आप ग्रुपिंग करेंगे उसी कॉलम के ऊपर आप हैविंग की कमांड यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा यूज़ नहीं कर सकते. ठीक, ये था हमारा आज का लेक्चर. बाकी सेलेक्ट की कमांड हमारी कुछ रहती हैं वो हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना काफ़ी है. थैंक यू स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़. If you want to mention or apply some condition on the group by command, so for this purpose we will use the having command. We will not use the where class. Okay, the having class sometime we want to retrieve the values of this function for only those groups that satisfy certain condition. If we want to apply certain condition on the grouping, so we will use the having class.
The having class is used for specifying a selection condition on groups rather than on individual tuples. For tuples, we will apply where class, and for group specifying a selection condition on groups, we will use having class. एग्जाम्पल क्या है, सेलेक्ट दोज डिपार्टमेंट्स हुज टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज लेस देन 5। इसके लिए कैसे लिखते हैं, सेलेक्ट काउंट एम्प्लॉय आईडी डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम, हैविंग काउंट एम्प्लॉय आईडी इज ग्रेटर देन 5 मीन्स के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जिस डिपार्टमेंट में 5 से कम है वो उनको शो कर दो, उन डिपार्टमेंट के नेम शो कर दो। इस क्यूरी को हम किस तरीके से अपने प्रैक्टिकल उसमें चेक करेंगे। इसी तरीके से सिंपली हम लिखते हैं ये वाली स्टेटमेंट। हम कहते हैं वो सारे रिकॉर्ड शो कर दो जिनकी फीस ज़्यादा हो, हैविंग फी इज ग्रेटर देन 1000। ठीक, जिनकी फी 1000 से ज़्यादा हो उन स्टूडेंट्स को या उनको काउंट करके शो कर दो। ठीक, ये आपको फी शो हो रही है जो 5000 से ज़्यादा है और टोटल नंबर 3 स्टूडेंट्स की 1500 है, 2 स्टूडेंट की 2000 और 4000। इसी तरीके से हम कहते हैं हैविंग फी इक्वल्स टू वन स्टूडेंट की, या हम कहते हैं काउंट करो स्टैटिक को, यहाँ पे हम कह देते हैं ठीक। अब यहाँ पे आपने वो रिकॉर्ड वो कॉलम मेंशन करना होगा जिसकी बेसिस पर आप ग्रुपिंग करें। ग्रुपिंग किसकी बेसिस, कौन से कॉलम पर मेंशन हो रही है, फी के कॉलम पर, आईडी के कॉलम पे नहीं। तो इस वजह से यहाँ पे आपको एरर मिल रहा है। ठीक, इसी तरीके से हम इक्वल का भी कर सकते हैं, लेस देन का भी कर सकते हैं। जिस कॉलम की बेसिस पर आप ग्रुपिंग करेंगे उसी कॉलम के ऊपर आप हैविंग की कमांड यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा यूज़ नहीं कर सकते। ठीक, ये था हमारा आज का लेक्चर। बाकी सेलेक्ट की कमांड हमारी कुछ रहती हैं वो हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।